Good morning, children. We discuss about the motion and different type of motion and also rest and motion formula. After that, we start Newton's law of motion. Already I defined in previous class about the inertia. Inertia, what is inertia? And who is given the idea about the inertia? Inertia is the property of the bodies or objects to remain in the original state of rest or uniform motion is called inertia. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो या तो रेस्ट में रहती है या यूनिफॉर्म मोशन में, और ये कॉन्सेप्ट जो है, दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय गैलीलियो. गैलीलियो ऑब्जर्व्ड व्हेन he was on chariot and he observed many times and then given idea about the inertia of rest and inertia of motion. Inertia of rest, a body is rest at want to stay at rest, or you observe in any vehicle, either train or bus, suddenly starts then we falls back, okay, or lanes opposite of the motion. If we want to clean the carpet or blazers, then you just hit with the stick or anything, then due to inertia of rest, the dust comes out from the carpet. Inertia of motion, a body is in motion, always wants to continue in motion in same direction. This is the example. Train suddenly stops the applied the brakes, then he falls forward, or sometimes you experience very hard, very much hurt by that type of motion. Like if your vehicle is very fast going, and then you observe that falls forward and finally hurt ourselves. That that observation is you seen. And luggage on the bus also just bind up, because due to sudden break, maybe luggage comes out from the bus or go falls back forward, or suddenly starts then falls backward. When direction changes, then falls another direction. So these observations gives idea about the inertia of rest and inertia of motion. Sir Isaac Newton, father of physics, and Newton's law of motion given by the Newton. Its laws of motion in his book Principia in 1687, that given each body in universe is either at rest or in motion till an external force is not applied. First part of Newton's law of motion defines inertia, यानी कि each body in universe is either rest or in moving with uniform motion. And second part of Newton's first law motion defines force. This define force because just you have a definition for the force: any kind of push and pull on any object which changes either state of rest or motion, or accelerate, change the direction, change the shape also. This given idea about the Newton's law of motion. Or so Newton's first law of motion is also say that it defines quality of the force. Quality of force यानी कि ये force ऑब्जेक्ट को रोकेगा, कि एक्सीलरेट करेगा, कि शेप चेंज करेगा. दिस Newton's first law of motion defines. And Newton's second law of motion. Newton's second law of motion
The rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction of applied force. Rate of change of momentum. But what is momentum? You have no idea about the momentum. Momentum, product of mass and velocity of moving body, is defined as momentum. P equal to m into v, mass of the object into velocity of the object. यानी जितना ज्यादा मास होगा, more mass, more momentum, more velocity, more momentum, and directly proportional. Momentum is directly proportional to mass and velocity both, and it is equal to the mass into velocity. So its unit is also kg meter per second, kg meter per second, and it is a vector quantity. So linear momentum is the product of mass and velocity of the moving object, is defined as momentum. And impulse change in momentum, change in is momentum in shortest time, less than 1 second. Rate of change of momentum is the change in momentum in 1 second. अगर 1 second से भी कम होगा तो that is defined as impulse, और impulsive force भी कहते हैं इसको, impulsive force. और its SI unit is also kg meter per second or Newton second. It is symbolized by J, and J equal to F into T, यानी कि force into time. तो ये हम लोगों का टॉपिक आता है जब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, तो मोमेंटम और इम्पल्स दोनों आएगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force, and change in momentum is told impulsive force. So this one, after that we find the motion formula, force formula for the force, or by the Newton's second law of motion. इसीलिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को कहा भी जाता है, क्वांटिटी ऑफ फोर्स डिफाइन करता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अभी तुमको क्या बताए थे, क्वालिटी ऑफ फोर्स कौन बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. कैसा होगा ये फोर्स, ये गाड़ी को रोकने वाला होगा, यानी कि रिटार्ड करेगा, कि ये एक्सीलरेट करेगा, कि रेस्ट से मोशन में लाएगा, कि मोशन से रेस्ट में लाएगा, और क्या शेप चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा. इट डिपेंड्स क्वालिटी ऑफ. And second law of motion defines quantity of force, यानी कि how we calculate the force. तो ये डेरिवेशन कैसे है भाई, लेट कंसीडर करो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, यानी कि u वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. सो मास इनटू वेलोसिटी mu, एंड फोर्स अगर F अप्लाई किया जाता है उस पर और a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करता है, देन फाइनल वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड जो है वो v हो जाता है. तो फाइनल मोमेंटम हो गया mv. अब चेंज इन मोमेंटम आफ्टर t सेकेंड mv माइनस mu, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड mv माइनस mu बाई t. अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F is proportional to change in momentum, यानी applied force is proportional to change in momentum per unit time. So F is proportional to mv minus u by t, but we know A equal to v minus u by t by first motion formula, already I studied in previous chapter, यानी first chapter. So F is proportional to ma, और F equal to kma. F equal to kma जब हो गया, then हम लोगों को k is the proportionality constant, यानी कि कोई भी चीज प्रोपोर्शनल होगा तो एक कांस्टेंट, यानी F by ma always, F divided by ma is always constant, and that k is called, that constant is called proportionality constant k. प्रैक्टिकली जब उन लोगों ने ऑब्जर्व किया तो k का वैल्यू 1 आया बाय द एक्सपेरिमेंट. बट हम लोग यहाँ पे शो करेंगे कि if 1 Newton force applied on 1 kg object, then object is accelerated by 1 meter per second square, and then 1 equal to k into 1 into 1, or k equal to 1. So F equal to ma. बच्चों ये हमने इसलिए बताया k 1 न्यूटन फोर्स, हम लोग 5 न्यूटन फोर्स ऑन 1 kg भी कह सकते थे. तो हम लोग को वहां भी कैलकुलेशन करने में थोड़ी मुश्किल होती कि कितने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करेगा.
अगर 5 न्यूटन 1 केजी पे आएगा तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करेगा। लेकिन अगर 1 न्यूटन फोर्स 5 केजी पर अप्लाई करेंगे तो 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करेगा, यानी तब भी के का वैल्यू 1 ही आएगा। सो प्रैक्टिकली के का वैल्यू 1 आया और किसी भी कंडीशन में 1 आया, सो हम लोग का फॉर्मूला रिड्यूस होके हो गया सो F इक्वल टू ma। और ये फॉर्मूला बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिवन द फॉर्मूला फॉर द फोर्स एंड इट डिफाइंस क्वांटिटी ऑफ फोर्स। आफ्टर दैट F इक्वल टू ma जब मिल गया तो हम लोग को A इक्वल टू हो जाएगा F by m, सिंपल अलजेब्रा अप्लाई किया हम लोगों ने, तो A इक्वल टू F by m मीन्स इफ force applied on any object then accelerate, and acceleration is directly proportional to the applied force, and acceleration is inversely proportional to the mass. Acceleration proportional to 1 by m means acceleration is inversely proportional to mass. Thus Newton's second law of motion is also defined. If force applied on any object, then object accelerate in the direction of force is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the object of the mass. But it is not second law of motion. Newton not given this. Newton's formula, Newton's second law of motion define the formula, and formula derive this definition. So not it is equivalent to the Newton's law of motion. Okay, it defines by the Newton's second law. Okay, if the force applied on any object, then object accelerate and in the direction of applied force and directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass. After that, Newton's third law of motion. Each action have equal and opposite reaction. Each action have equal and opposite reaction. यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। एक टीचर तुम्हें मारती है तो तुम्हारे को लगता है कि तुमको मारी, लेकिन तुम भी टीचर को मार रहे हो। अब डिपेंड करता है कि टीचर जो मारी उसकी हथेली थोड़ी तगड़ी थी और तुम्हारा गाल थोड़ा चिकना था और नेचुरली तुम्हें चोट ज्यादा लगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, चोट टीचर को भी लगता है। इसलिए आपको ये चाहिए कि आप कोशिश करें कि टीचर से मार ना खाएं, अपने बड़ों से मार ना खाएं, कि अनजाने में आप भी उन्हें मार रहे हैं। According to the physics, each action have equal and opposite reaction. बेटा, when a shot is fired, then cannon recoils. जब हम खिलौने वाले गन भी अगर मारते हो तो देखते हो पीछे धक्का मारता है, तो दैट रिक्वाइल्स है ना, उसी को रिक्वाइल कहा जाता है। पीछे जब धक्का मारता है दैट इज रिक्वाइल। उसी तरह से मोशन ऑफ रॉकेट जो है उसकी क्या होता है कि उसके फ्यूल्स बहुत तेजी से जलते हैं और वो प्रेशर डालते हैं अर्थ पर और रॉकेट मूव करता है अपवर्ड। तो मोशन ऑफ रॉकेट भी हम लोग ड्यू टू ईच एक्शन है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसी तरह से व्हेन जंप फ्रॉम द बोट पुश्ड बैक, आप लोग कभी अगर बोट पे ट्रेवल कर रहे होंगे और किनारे पे जंप मारते होंगे तो बोट पीछे भाग जाता है। इवन वी आर एबल टू वॉक और रन बाय द ईच एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप लोग कभी दौड़ते हुए फिसले हैं तो गिरे होंगे तो कभी मुंह के बल गिरे होंगे, कभी पीठ के बल गिरे होंगे। तो बच्चों, जब हम चलते हैं तो जब हम पहला पांव आगे बढ़ाते हैं, जब अगला पांव आगे बढ़ाते हैं तो उस समय क्या होता है कि हम पिछला पांव को पीछे की ओर धक्का देते हैं। अगला पांव बढ़ाने के लिए हम अपने पिछला पांव को पीछे की ओर धक्का देते हैं। आप लोग इस चलते समय ऑब्जर्व कीजिएगा, अभी तो फील ना किए होंगे, लेकिन आप जब चलेंगे तो आपको इसका महसूस होगा कि जब आप चलते हैं तो अगला पांव उठाकर जैसे ही आप आगे बढ़ाते हैं आपका पिछला पांव पीछे की ओर प्रेशर देता है, और जब वो फोर्स पीछे की ओर लगाता है तो अर्थ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है और जिसके कारण आप आगे बढ़ते हैं। अगर बाय द वे किसी स्लिपरी जगह पर आप अगला पांव उठा के आगे बढ़ाने जा रहे हैं और पीछे की ओर धक्का मारे तो आप पीछे की ओर फिसलते जाएंगे और मुंह के बल गिरेंगे।
अब सुनिए, जब अगला पांव रख दिए और पिछला पांव को उठाना है तो अगला पांव को आप आगे की ओर धक्का मारते हैं, यानी कि प्रेशर आगे की ओर देते हैं और पिछला पांव को खींचते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, आप पीठ के बल गिरते हैं, यानी कि आपको पीछे जैसे ही आप स्लीपरी कंडीशन में आते हैं, आपका क्या होता है, अगला पांव आगे की ओर ससरता जाता है और आप पीठ के बल गिरते हैं। इसीलिए हम लोग कभी मुंह के बल भी गिर जाते हैं और कभी पीठ के बल भी गिर जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा पांव कब और कैसे कंडीशन में पड़ा। इसी तरह से एक बच्चे ने पूछा मेरे से कि मैम, जब हम लोग किसी को धक्का मारते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है, तो वो क्यों नहीं वो गिर जाता है, मैं क्यों नहीं गिरता हूँ? एक बच्चे ने पूछा मुझसे। तो बच्चे बता देता हूँ, मैं बता देती हूँ इस बात के लिए कि व्हेन यू पुश दैट पर्सन, that person also equal and opposite force applied on you. Due to that, you come in rest. If you are ready to push that person and that person moves from that moment, then you falls in that direction, in direction which you are pushing that person, because there is no object and you fall in on that direction. So children, वो तुम तो उसका बुरा कर रहे थे, लेकिन वो उस तुम्हारा भला किया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाकर तुम्हें रेस्ट में लाया और तुमने उसको धक्का मारकर उसको मोशन में लाकर गिरा दिया। तो आप बुरा कर रहे, लेकिन वो आपके लिए भला किया। ये चीज जो है आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब इसी थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आइडिया मिलता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे भाई? इफ नो फोर्स वर्क ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, माने कर दो बॉडी टकराया, उस पर कोई तीसरा फोर्स नहीं लगाया गया, अंडर म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द पार्टिकल, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन एनी डायरेक्शन रिमेन्स कंजर्व। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराया तो वो दोनों ऑब्जेक्ट टकराने पर अगर कोई तीसरा फोर्स नहीं लगाया तो टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा। अब इसका एग्जांपल तुम लोग को हम दिखाएं। मान लीजिए कि ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे की ओर मूव कर रहा है। ए ऑब्जेक्ट बी से टकराता है और बी ऑब्जेक्ट ए से टकराता है। तो टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ मास m1 m2 moving with initial velocity u1 and u2 respectively collide with each other. A applied Fa force on B and B applied Fb force on A. Finally, velocity of changes after collision to v1 and v2 respectively after t second. यानी कि फोर्स अप्लाई किया और t सेकेंड के बाद उसका कॉलिजन के बाद v1 v2 उसकी वेलोसिटी होगी। तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन Fa इक्वल टू हो जाएगा, Fa किस पर लगाया गया है? B पर। सो Fa इक्वल टू हो गया m2 v2 माइनस m2 u2 बाई t और Fb इक्वल टू हो गया m1 v1 माइनस m1 u1 बाई t। ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हो गया। अब जरा सा हम लोग देखें कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, Fa इक्वल टू माइनस Fb, यानी कि ईच एक्शन है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो ए पर लगाया गया फोर्स जो है बी पे लगाया गया फोर्स पे दोनों बराबर होगा। और अब हम Fa इक्वल टू माइनस Fb तो हम पुट किए और सिंपल अलजेब्रा देखो, टी कट गया, उसके बाद m2 v2 माइनस m2 u2 माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस m1 प्लस m1 u1 और एक तरफ ले आओ m1 v1 को और एक तरफ ले आओ m1 u2 को, तो आपका हो गया m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 और thus final momentum equal to initial momentum and conclusion total momentum is conserved. Like this way we can prove the total momentum is conserved. Thank you. अब ये आपका क्लास ओवर हुआ और नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स और एवरीथिंग। ओके, बाय।